So hello everyone, this is Purvishan. Of course, you guys know me, but guys, here we have someone very special with us today on our channel. That is Dr. Akram. He lives in Australia and he is going to guide us and solve a lot of our problems today on this channel. So a very warm welcome to him, and he is going to introduce himself now. Thank you, Purvi. And my name is Dr. Akram Ahmed, and I'm living and working in Australia. So I'm basically a medical scientist and a pharmacy lecturer here. And I always basically guide all the healthcare professionals to migrate to Australia, especially the Indians. So especially, for example, if you are a medical doctor, so what are the steps you need to take in order to migrate to Australia? Okay, so basically, as an Indian medical student, like many of us just plan to go abroad, many of us will take USMLE path, many wants to go to Australia. So this video is especially for students who are planning to go to Australia, or even for the students who are actually confused right now कि उन्हें कौन सी country choose करनी चाहिए for abroad. So this video is specifically for doing your postgrad in Australia. So I think मेरे दिमाग में भी बहुत सारी क्वेरीज है अब्रॉड को लेके, सो डॉक्टर अकरम इज गोइंग टू सॉल्व ऑल द क्वेरीज राइट नाउ. आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हियर ऑन माय फोन, so yes, so that I don't miss out on anything, so I'm just going to ask Dr. Akram the questions and he is definitely going to answer that. Okay, so I'll be starting with my first question, जो कि like मेरे दिमाग में क्या सबके दिमाग में होता है कि why should I migrate to Australia? Like, what is the difference here in Indian postgrad and doing our like pursuing our whole medical journey in Australia? So basically, if you're migrating to Australia, a lot of advantage. It's not just to come here to study postgraduate and want to go back. So here, most of the doctors basically are Indian grads, and they are living and working in Australia. So the number one, I can say that we provide around 200,000 permanent visa, means you can be Australian citizen. Okay. Once you pass this exam, and secondly, they provide basically if you have education is free for the kids, healthcare is free here in Australia, and quality of life, of course, is very high as compared to India. And earning is very high. I can say maybe like 50 times higher than India if you can earn in Australia. A lot of advantage, so people are migrating to Australia, especially the medical graduates to Australia. Yes, we all know कि how beautiful Australia is as a country and what are the perks of going there, and आपने बहुत अच्छे से elaborate किया. So now we're just going to move on to the Australian medical examination, जो कि like I think that is one of the way जिससे कि Indian medical graduates जा सकते हैं Australia and they can pursue their medical journey ahead. So up like I would like you to explain me about these exams and everything related to the journey. Yes, so basically, as know in India, like clinical branch, non-clinical branch. For example, if you want to go for any non-clinical branch, then no need to go for AMC, right? For example, if you want to do like pharmacology or maybe like anatomy, physiology, public health, and so on. But if you want to go any clinical branch, surgery, pediatrics, obs and gynae, or whatever, all those things. So in that case, you have to complete this some steps. So the first step, you have to go for document evaluation. Maybe they will just check your degree and your registration in the home country, right? And then next step that you have to write AMC 1 exam. So this is basically a multiple choice question. And you can give this exam in the home country. In India, we have around 9 centers. So you can write this exam from there. And once you pass this exam, then you have to pass a English test, maybe IELTS or PTE, and then you have to write AMC2. So AMC1 basically is a multiple choice question, basically the basic clinical science. But this AMC2 mostly based on fully clinical oriented things. For example, they will give you some case and you have to find out the issues and you have to resolve that. And once you pass this part 2, then you will get a 1 year residency here in Australia. Okay. And that is a high paid job. I can say around 130,000 Australian dollar per year. If we convert it into Indian rupees, might be 80 lakh or something. And another that some student always ask me, sir, if we pass only AMC1, can we work in Australia? The answer is yes. You can work. You just complete your AMC1 plus English, then you can work as a GMO, junior medical officer. So this is nothing but you
not a RMP yet because you need to pass part 2 as well, right? But here in this case you have to work under a RMP in Australia. जैसे कि आप लोग बेसिकली इन इंडिया में, जैसे हम लोग MBBS की जो इंटर्नशिप होती है, जो CRI होते हैं आप लोग, तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी किसी आप कोई एक कोई जैसे आपको कोई सीनियर है या कोई प्रोफेसर है या कोई PG का, उसके अंडर में आपको करनी पड़ती है, राइट? आपको कोई डिस्क्रिप्शन का राइट नहीं होता है, राइट, until you complete your internship and get done your RMP. तो ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में आप GM में जॉब कर सकते हो और उसमें अराउंड 70,000 पर ईयर की सैलरी मिलती है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि AMC पार्ट 1 इंडिया से पास करके और इंग्लिश इंडिया से पास करके और फिर वो यहाँ पर जॉब ढूंढ कर सर्च करते हैं और फिर यहाँ पर GM में जॉब करते रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और साथ में प्रिपरेशन करते रहते हैं AMC 2 की। ओके, आई थिंक ये तो सबसे अच्छी बात है कि वी कैन वर्क लाइक अलोंग विद प्रिपरेशन। अच्छा, आई हैव अनदर क्वेश्चन कि जो AMC 2 है वो हमें होम कंट्री में देना होता है या फिर वी हैव टू गो टू ऑस्ट्रेलिया? But this is the good news now. Basically, earlier you have to come to Australia and write AMC 2. But अभी कोविड के टाइम से क्या हुआ, उसको AMC 2 को भी अलाउ कर दिया कि आप अपने होम कंट्री से दे सकते हो। तो दोनों एग्जाम आप दे सकते हो अभी होम कंट्री से। एंड ये जो एग्जाम होता है बेसिकली AMC 1 एंड AMC 2, इसके लिए जो हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है वो उसका सूटेबल टाइम क्या होगा? लाइक क्या हम उसे लाइक अपने इंटर्नशिप ईयर में भी कर सकते हैं या फिर MBBS डिग्री के बाद ही करना होता है? यस, बेसिकली इसमें क्या है ना कि आपकी डिग्री कंप्लीट होना जरूरी है। तो वो बेसिकली आपकी डिग्री या प्रोविजनल डिग्री है या उसकी ट्रांसक्रिप्ट वो मैंडेटरी है, तो उसके बाद ही कर पाओगे आप। जैसे कि USMLE में आप अगर ईयर 3 ईयर 4 में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, यार, राइट। मगर ऑस्ट्रेलिया में AMC में डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते एंड ये जो इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स होते हैं, लाइक कैन यू जस्ट इलैबोरेट अस कि उसकी क्या रजिस्ट्रेशन फी होगी या हो। फिर यस, तो व्हाट बेसिकली द एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड? अगर हम कंपेयर भी करें इसको, अगर जैसे कि UK प्लेब या USMLE, उसके कंपेरिजन में ये बहुत ही इजी है और ये हर महीने एग्जाम होता है, मंथली एग्जाम है बेसिकली। वेन एवर यू आर कॉन्फिडेंट यू कैन गो एंड राइट द एग्जाम, ठीक है। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन करनी होती है उसको बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट एवोल्यूशन, होता है पार्ट 1, ठीक है। तो उसके भी 2 पार्ट होते हैं, होता है एपिक वेरिफिकेशन और एक होता है फिर जो AMC वेरिफिकेशन करती है। तो एपिक वेरिफिकेशन तो बेसिकली एक जनरल, आप कहीं भी जाओगे फॉरेन कंट्री में, इवन आप या तो आप UK जाओ या US जाओ, USMLE या प्लेब, वहाँ भी एपिक वेरिफिकेशन होती है और यहाँ भी वही होती है। एपिक बेसिकली जस्ट सिंपली वो आपकी डिग्री चेक करते हैं, राइट। और उसके बाद फिर आप AMC वेबसाइट पे जाओ। इन दोनों बेसिकली अराउंड 1000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की फीस होती है, इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूँ तो इंडियन रुपीज में मतलब करीब 50,000 रुपए के आसपास इसकी फीस रहेगी। अच्छा, यहाँ पे मतलब बेसिकली व्हेन वी गो टू ऑस्ट्रेलिया तो बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है कि जैसे अगर हम इंडिया से अब्रॉड जा रहे हैं तो हमें बहुत मेजर ब्रांचेस मिलती नहीं है, लाइक फॉर MBB, लाइक आफ्टर द MBBS थिंग। लाइक जो मेजर ब्रांचेस होती हैं वो जो ऑस्ट्रेलिया के ही रेसिडेंट्स होंगे उन्हें मिलेगी, लाइक इंडियंस को उतनी ज्यादा ब्रांचेस नहीं मिलती है। नहीं, ये लाइक बेसिकली कैन यू जस्ट ये क्लैरिफाई? बेसिकली एक थोड़ा सा मिथ है। ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है एजुकेशन में, कि भाई लोकल्स को प्रेफरेंस देंगे और हमको नहीं देंगे, या जॉब्स में भी, है ना। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली ये आपके CV पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, किसी ने MBBS MD किया इंडिया से, अब वो उसने अप्लाई किया, तो ऑब्वियसली आप MBBS हो और वो एक MD है, तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। और जो जो बात है ये क्लिनिकल जो ब्रांचेस की है ना, और तो ब्रांचेस इतनी ज़्यादा है नहीं क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ही जो है 2.5 करोड़ है पूरे ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हाई डिमांड है फॉरेन डॉक्टर्स की। जो IMGs होते हैं, इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स, उनकी इसीलिए यहाँ पर हाई डिमांड है क्योंकि यहाँ पर इतने कॉलेजेस नहीं है, राइट। तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई आपने अगर आप ओवरसीज हो तो आपको ये ब्रांच नहीं मिलेगी। कुछ ब्रांचेस यहाँ पे ऐसी हैं बहुत पैसे अर्न करते हैं, जैसे कि इंडिया में क्या है ना, हम लोग का एक सोशल आपके बेसिकली ना कि हम लोग के बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली रिलेटिव्स और सबसे मिलकर रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग इस लाइक के इंडिविजुअल लोग रहते हैं। हाई स्कूल के बाद बच्चे पेरेंट्स के साथ में नहीं रहते हैं। बहुत सारे लोग ना साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, इस वजह से रहते हैं। तो साइकेट्री ऐसे कि यहाँ पे बहुत ही हॉट ब्रांच है, मगर लोग उसको लेना नहीं चाहते, है हाँ, ना। बिकॉज इंडिया में वो इतना कॉमन नहीं है। यस, सेम एग्जांपल है क्या, इमरजेंसी मेडिसिन, उसकी बहुत डिमांड है यहाँ पर, बहुत इजीली मिल जाएगी। लोकल नहीं जाना चाहते वहां पर। हाँ हाँ। ये बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो आपको इजीली मिल सकती हैं,
और हाँ, कंपटीशन तो ऑब्वियसली रहेगा। अगर आपको जो है सर्जरी में या जो है इंटरनल मेडिसिन में जाना है तो वो तो हर इवन इंडिया में इतना कंपटीशन है, तो यहाँ भी रहेगा। यस। अगर मैं ये कहूँगा कि अगर आपने जनरल जीपी भी बन गए ना आप, आपने अगर वो नहीं भी किया, तो इसकी सैलरी इतनी होती है, अराउंड 1.5 CR की सैलरी होती है यहाँ पर एक साल की। तो यानी कि वो, मतलब इंडिया में अगर आप सुपर स्पेशलिस्ट बन जाए तभी भी आप इतना अर्न नहीं कर पाओगे, राइट? तो पैसे के उससे भी एक बहुत ही वो है। बंदे, ये लोग क्या करते हैं, लोग आ जाते हैं यहाँ पर, फिर वो ट्राई करते रहते हैं, जीपी बन जाते हैं, सैलरी उनको मिलने लगती है अच्छी खासी, जो है 7-8 लाख रुपए तक उनको बन जाते हैं पर मंथ के। फिर वो ट्राई करते थे, जब उनको मिल जाते हैं चले जाते हैं उधर। सो जस्ट वांटेड टू आस्क, जैसे अभी आपने ऐसे बोला कि मतलब 6 to 7 lakhs पर मंथ वी कैन अर्न एज अ लाइक जनरल मेडिकल ऑफिसर। सो और क्या देन, ये वहाँ की लाइफस्टाइल है, उसके कंपैरिजन में हाउ मच इज इट? नहीं नहीं, ये मतलब बहुत बहुत सारे मतलब मैं बताऊंगा बिकॉज। आपको। यस, मैं बताऊंगा आपको। व्हेन व्हेन आई केम टू ऑस्ट्रेलिया, तो मैं यहाँ पीएचडी करने आया था क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में। तो मुझे जो हाँ। स्कॉलरशिप मिलती थी वो थी 27,000। तो मैं और मेरी वाइफ, हम लोग उसमें सर्वाइवल करते थे, लाइक 27,000 ओनली, राइट? अब लगाओ, आपको अगर आप 2 लाख या 2.5 लाख मिलेंगे तो आप अभी भी जो ना, आप 27 की जगह आप 50,000 आप जो खर्च कर लोगे, डबल कर लो उसका, राइट? तो ये मोर देन एनफ पैसे होते हैं बेसिकली यहाँ पर रहने का, और के लिए, एक एक फैमिली के लिए, सिंगल बंदे को तो बहुत बहुत है ये। So my next question is, can you just please provide us guidance for AHPRA registration? Like, what is it? A lot of students have a lot of queries related to this registration. So can you just elaborate on that? Basically, it's called APRA registration, right? So if I can give you the example in India, like we have a Medical Council of India, Nursing Council of India, Dental Council of India, Pharmacy Council of India. So we have so many branches there, and everyone is the separately they work in India. But here in Australia, APRA is only the body, whatever your Uh-huh. profession in healthcare, whether you are a medical doctor, dentist, pharmacist, physiotherapist, सारे लोगों को एप्रा में ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है? तो ये सिंगल बॉडी है, ठीक है? तो ये रजिस्ट्रेशन की बॉडी है, मगर जो आपके एग्जाम है और जो एजुकेशन होती है वो ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल उसको जो है देखती है। Okay, so basically it's equal to हमारा NMC जो इंडिया में है, जो रेगुलेटिंग बॉडी हाँ, है। अभी जो बना है ऐसे ऐसे ही मान सकते हैं एनएमसी, पर एनएमसी खाली मेडिकल को करती है, एमबीबीएस को। पर ये अच्छा। एप्रा और जो है सारे हेल्थ केयर को करती है। नर्स है तो वो भी यहीं पे करेगा, और डेंटिस्ट है वो भी यहाँ करे, सारे लोग को एक ही जगह पर रजिस्ट्रेशन होती है। ओके, एंड ये जो AMC 1 हम एग्जाम देंगे एंड AMC 2 जब देंगे, तो इनके बीच में कितना गैप होना चाहिए? लाइक AMC 1 के रिजल्ट्स कब तक वैलिड रहते हैं? हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हमने एएमसी पार्ट 1 पास किया और शायद कुछ सर्टेन टाइम के बाद हमें पार्ट 2 पास करना पड़ेगा, हमने पास नहीं कर पाए तो हमारा जो एग्जाम 1 है वो भी इनवैलिड हो जाएगा। क्वालिफाई हो तो जाए। ऐसा नहीं है, आप कभी भी दे सकते हो। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि 3 साल 5 साल कोई एक्सपायरी नहीं होती है उसकी, और लोग ऐसा देते रहते हैं। पर आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको पास करना है। मेरे हिसाब से आप विद इन, अगर आप 6 मंथ लग जाओगे तो आप एएमसी 2 भी पास कर जाओगे। AMC 2 थोड़ा सा टफ होता है एज कम्पेयर टू पार्ट 1। पार्ट 1 में जो है 60 to 80% पासिंग मार्क्स से होते हैं, मतलब लोग पास करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, अप टू 80%, ठीक है? और पार्ट 2 जो है ये थोड़ा सा टफ होता है, इसमें करीब 20-25% करीब लोग पास करते हैं उसको। अच्छा, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है, लाइक इफ वी आर, लाइक इफ वील कंपेयर हमारे नीट PG का एग्जाम हम्म। as compared to AMC 1 and AMC Part 2, let's say we are comparing it to AMC Part 2 because वो ज्यादा डिफिकल्ट है, तो नीट PG वर्सेस AMC 2 में डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, मतलब देखो, काइंड ऑफ? जो नीट पीजी है ना, AMC 1 तो क्लियर हो जाएगा उससे, हो सकता है। कुछ कुछ चीजें चेंज होती हैं यहाँ पे, जो गाइडलाइंस जो यूज की जाती हैं और जो है पेशेंट को कैसे अप्रोच करते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर चेंजेस हैं, वो आपको बताई जाएंगी कोर्स के अंदर। आ, और जो AMC 2 जो है ये बेसिकली ऑस की एक एग्जाम होता है, ठीक है? ये OSCE एक एग्जाम होता है। ये ऑस की एग्जाम इंडियन जो मेडिकल एजुकेशन वहाँ शायद पढ़ाया नहीं जाता है आज की डेट में, राइट? आ, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, ऐसे 3-4 उसके स्टेशन होते हैं। तो जो पेशेंट आएगा वहाँ पर, एक बार आप उससे इंटरेक्ट करोगे, एक बार आप जो है लेक्चर से इंटरेक्ट करोगे। तो ऐसे 2-3 स्टेशन पे आपको जाना पड़ता है, और वो एक एग्जाम थोड़ा टफ एग्जाम होता है, क्योंकि इंडियन जितने भी हेल्थ केयर वाले लोग होते हैं उनको उसका आइडिया नहीं होता है। तो मैं कहूँ, अगर आपने क्लिनिकल आपने किया हुआ है तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। इतना टफ भी नहीं है। बहुत सारे इंडियन बेसिकली जो 25% जो मैंने बताया आपको,
इंडियन मैक्सिमम उसमें से इंडियन पास करते हैं, इंडियन और चाइनीज। मगर इट्स लाइक मीडियोकर एग्जाम है, बहुत टफ नहीं है आपके जो है। अगर आपने नीट पीजी कर लिया ना, आपको क्लिनिकल ब्रांच इंडिया में मिल गई है, तो डेफिनेटली मैं कहूँगा यहाँ भी मिल जाएगी आपको, आप पास कर जाओगे। हाँ, अगर आपको वहाँ अगर नॉन क्लिनिकल मिल रही है इंडिया, आपकी आपकी ब्रांच जो है, आपकी रैंक बहुत ही पीछे हो गई है, तो शायद उस केस में शायद कि थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।